वेलकम टू बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। आप देख रहे हो नेशनल सेंसरी न्यूज नेटवर्क का खास कार्यक्रम बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो। बेस्ट स्टूडेंट टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन के स्पीच कंपटीशन को लेकर आज हमारी टीम पहुंची है कॉन्वेंट स्कूल चांटगांव में। देखने वाला रहेगा कैसा रहने वाला है एसपी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का स्पीच कंपटीशन। जिस भी बच्चे की स्पीच आपको अच्छी लगे उस बच्चे के लिए वोट जरूर करें। जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा वोट होंगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी रैंक होगी, और जिस बच्चे की जितनी अच्छी रैंक होगी उस बच्चे की अपनी क्लास में उतनी अच्छी पोजीशन होगी। केवल सब्सक्राइबर और फॉलोवर ही वोट कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहा है तो हमारे फेसबुक पर, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है एसपी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का स्पीच कॉम्पिटिशन। Welcome to the principal, sir, and all my dear students. Today I would like to share my views about child labor, social issue present all over the world. It affects the life of the children. The children of young age is meant for study and education. When children are forced to work, they do not have enough time for their education. Moreover, labor work is painful for children. This can spoil their future. It is seen that poverty is the main reason of the child labor. Moreover, as a citizen of the country, we should also oppose child labor. The government of India has made a law to stop child labor. According to Child Labor Act of 1986, the government is also taking measures to stop child labor. It is seen that poverty is the main reason of the child labor. Parents who are poor send their children to earn money. We should report any shop or factory that hires the children as laborers. With this, I concluded my speech. Thank you everyone for listening to me patiently. Thank you. आदरणीय प्रधानाचार्य और सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानवी, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं भारतीय संस्कृति पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ और इस अवसर पर भाषण देने का अवसर प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ। संस्कृति शिक्षा या जन्म देने वाली अवस्था है। यह विशेष समय पर एक विशेष समाज के विचार और दर्शन वास्तव में संस्कृति को नैतिकता के मूल्यों से बनाया गया है। यह समाज को नियंत्रित करती है। संस्कृति सामाजिक धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं आदि के कारकों का परिणाम है। तो यह महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी संस्कृति को समृद्ध व सकारात्मक के साथ विकसित करें। विविधता में एकता के कारण भारत को हमेशा दुनिया में समृद्ध माना जाता है। हमारे देश की विशेषता धर्मनिरपेक्ष है। यह हर नागरिक को संस्कृति का सम्मान करके बंधुत्व, अखंडता और शांति का जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ समाज हमारे देश की विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि संस्कृति का निर्माण करना आसान है, परंतु उसे संरक्षित करना बहुत मुश्किल है। हमें संस्कृति का निर्माण करना चाहिए और ध्यानपूर्वक उसे संरक्षित करना चाहिए। धन्यवाद। To all of you, my name is Rishi, respected chief guest, honorable principal, teachers, and my dear friends. Warm greeting to all of you. I heartily welcome to everyone this Save Tree campaign. Today I am here to share a view about deforestation. Deforestation is a harsh reality of present time. It is an act of cutting down trees, forests, which is harmful for our environment. Despite knowing the importance of trees, people are continue to cut down trees and forests for building and construction purpose. Deforestation also take place when the forest or land is converted into farms, or when the forests are cut for the need of fuel and wood. It is not only destroy trees but also affect animals. Birds and animals became homeless as their natural habitat. Strict law must be imposed to cutting down trees. People should be aware about the harmful effect of trees. We should stop people from cutting trees and encourage them to more plant and more tree instead. Last but not least, I would like to say, don't spoil the scenery by destroying the greenery. Save our planet. Thank you. आदरणीय शिक्षकगण और छात्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि, मैं सुपर स्कूल की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय भ्रष्टाचार है। मैं उसी पर अपने विचारों को प्रकट करूंगी, विशेष रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार पर। हमारे देश के गठन के बाद राजनीतिक नेता और सरकारी क्षेत्रों में शासन की बहुत बड़ी भागीदारी है। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट प्लस आचरण। ऐसा कार्य जो अपने स्वार्थ एवं सिद्धि की कामना के लिए समाज में नैतिक मूल्यों की ताक पर रखकर किया जाता है, वह भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार हमारे पूरे देश में महामारी की तरह फैल रहा है। दीमक की तरह हमारे पूरे देश को खत्म कर रहा है।
लोग सत्य के मार्ग पर, तरक्की के मार्ग पर चलने की बजाय भ्रष्ट की नीतियों को अपनाते जा रहे हैं। आज से हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे जानबूझकर चीजों के दाम बढ़ाना, स्वार्थ के लिए चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में ऑपरेशन के नाम पर पैसे ऐंठना, हर काम पैसे लेकर करना, परीक्षा में नकल आदि। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि इस अपराध के लिए कोई कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा तो हमारे पूरे देश को खोखला करता जाएगा। विश्व भर में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये बेहद आवश्यक है कि इस जहरीले सांप को हम कुचल डालें और सरकार को इससे दूर करने के लिए उपाय करने चाहिए। धन्यवाद।